नमस्कार, आप देख रहे हैं केपी न्यूज 24/7। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। बीदर जिला पुलिस मुख्यालय में रहे जिम को अपग्रेड कर उद्घाटित। वन एवं बीदर जिला प्रभारी मंत्री ईश्वर खंडरे ने कहा कि शिकायत पर जांच और कार्यवाही होगी। कर्नाटक को एशिया में नंबर 1 व निर्माण केंद्र बनाने के लिए औद्योगिक नीति में सुधार। कर्नाटक अपने हवाई अड्डा प्राधिकरण पर विचार कर रहा है। एचडी कुमारस्वामी किसी पार्टी की नहीं, लोगों की आवाज। केंद्र कैबिनेट का बड़ा फैसला, पीएम ई बस सेवा के तहत 100 शहरों को मिलेगी 10,000 बसें। जब तक लूटे गए हथियार बरामद नहीं किए जाते, मणिपुर में शांति नहीं होगी, गौरव गोगोई का बड़ा बयान। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। बीदर जिला पुलिस मुख्यालय में रहे जिम को अपग्रेड कर आज उसका उद्घाटन एसपी चन्नबसवन्ना एसएल ने किया। इस अवसर पर एसपी चन्नबसवन्ना ने जिम को अपग्रेड किए जाने की बात बताई। इस दौरान एडीएसपी महेश मेघनावर, डीएसपी केएम सतीश ने बात की। इस मौके पर पुलिस अधिकारी व कर्मी आदि उपस्थित रहे। कैमरामैन संतोष का कवरेज। सार्वजनिक ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಗಾಂಧಿಗಂಜ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದೆ। ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ನಾವು ಗಾಂಧಿಗಂಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ಸರ್ಕಲ್ ಹತ್ತಿರ ನಾವು 10 ವರ್ಷ ಸರ್ಕಲ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ನಾವೇ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ। ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ನಾವು ನವಬಾದಾಗ ಒಂದು ಬಸವೇಶ್ವರ ಸರ್ಕಲ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ। ಈ ಥರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆ ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರು ಭಾಳ ಉತ್ಸುಕವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಇದು ಸಾಹೇಬರು ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕೇಳಿದ್ರು, ಅದು ಭಾಳ ತುಂಬ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಅವ್ರು ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರು। ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವರು ಇವತ್ತು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಅವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೆ। ಬಂದಾಗಿದ್ದ ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ ಸರ್, ಈ ಎಲ್ಲ ಹಾಳಾಗಿ ಭಾಳ ಬಿದ್ದು ಹೋಗಿತ್ತು ಸರ್। ಅದು ಸಾಹೇಬ್ರು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಭಾಳ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ನಿಂದ ಅದನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿ ಇವತ್ತು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲರೂ। ಇದರ ಸದ್ಬಳಕೆ ಆಗಬೇಕು, ಯಾರು ಸಾಹೇಬ್ರು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿ ಇದರ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಭಾಗವಹಿಸ್ಬೇಕಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೇಳ್ತೀನಿ। ಇನ್ನೂ ಭಾಳ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿದೆ, ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಏನು ಪೊಲೀಸ್ ಜಿಮ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಏನಿದೆ ಅದರ ರೀಫರ್ನಿಷಿಂಗ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನು ಏನಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪುನಶ್ಚೇತನಗೊಳಿಸಿದ್ದೀವಿ। ಈ ಪುನಶ್ಚೇತನಗೊಳಿಸಿ ಇದರ ಒಂದು ಓಪನಿಂಗಿಗೆ ತಾವೆಲ್ಲ ಏನಂದರೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ। ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಸದೃಢವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಇತ್ತು। ಯಾಕೆಂದರೆ ಉಳಿದ ಇಲಾಖೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಭಿನ್ನವಾಗಿರ್ತವೆ। ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ದೇಹವನ್ನು ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಕಠಿಣ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ। ಆದ್ದರಿಂದ ಇವತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಜಿಮ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಏನಿದೆ ಬೀದರ್ದು, ಇದನ್ನು ರೀಫರ್ನಿಷಿಂಗ್ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ। ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇರ್ಬೋದು, ಮಹಿಳಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಏನಂದರೆ ಇದನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು, ಈ ಒಂದು ಫೆಸಿಲಿಟಿನ ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅವರು ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ। ಈ ಒಂದು ರೀಫರ್ನಿಷಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಗಾಂಧಿಗಂಜ್ನ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನವರು ಕೂಡ ಏನಂದರೆ ಅವರ CSR ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ। ಆ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಮತ್ತು ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಬ್ಗೆ ಇದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಫಂಡ್ನಿಂದ ಇದನ್ನು ರೀಫರ್ನಿಷಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ। जो लोग हवा में आते हैं वो हवा में चले जाते हैं। बिना केंद्रीय उर्वरक मंत्री भगवंत खुबा का नाम लिए बिना वन एवं बीदर जिला प्रभारी मंत्री ईश्वर खंडरे ने कहा। वह कल ध्वजारोहण के बाद शहर के प्रतापनगर में स्थित पत्रिका भवन में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मंत्री खुबा बेतुके बयान दे रहे हैं, लोग तय करेंगे कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। खड़गे ने कहा कि उन्होंने कभी भी स्वार्थ के लिए राजनीति नहीं की, जनता सेवा के लिए राजनीति में हूँ। एक स्वतंत्रता सेनानी का बेटा हूँ, आज पैसे या कोई जमीन का मामला नहीं किया है। खुबा लगातार झूठ बोल रहे हैं और अगर कुछ है तो साबित करें। इस दौरान खंडरे ने विश्वास व्यक्त किया कि आगामी लोकसभा चुनाव में बीदर से कांग्रेस जीत हासिल करेगी।
खंडे ने खुबा और औरात के विधायक प्रभु चौहान का आपसी मामला है। अगर कोई भी जान से मारने की धमकी देने की शिकायत करता है तो इस पर कार्यवाही की जाएगी। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। ನೋಡಿ, ಈಗ ಇದು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಆಂತರಿಕ ವಿಷಯ. ಪ್ರಭು ಚವ್ಹಾಣ್ ರವರೇ ಇರಬಹುದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಇರಬಹುದು, ಯಾರು ಲಿಖಿತವಾಗಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ದೂರನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತವಾಗಿ ತನಿಖೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅಸಂಬದ್ಧವಾದಂಥ ಹೇಳಿಕೆ ನೋಡಿ, ಯಾರು ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಕುತಂತ್ರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾರ್ದೇನಿದೆ ಅದು ಅವರವರು ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮಾಧ್ಯಮದವರು, ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಲಿ. ನಾನು ಇವತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ದಿವಸ ಅಂತ ಯಾವುದೂ ಶಬ್ದ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ನೋಡಿ, ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ರಾಜಕಾರಣ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡವರಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಮೊದಲಿನಿಂದ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ, ಸೇವೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದವರು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಹೆಚ್ಚಿಗೇನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಯಾರ ಸಾಧನೆ ಏನಿದೆ, ಯಾರ ಚರಿತ್ರೆ ಏನಿದೆ ಎಲ್ಲವೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ನಾನು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸೇನಾನಿಯ ಮಗ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇವರು ಯಾರಿಗಾದರೂ ನೈತಿಕತೆ ಇದ್ದರೆ ಒಂದು ನ್ಯಾಯ ಪೈಸೆ ಒಂದು ಇಂಚು ಜಾಗ ಯಾರ್ಯಾರ್ದು ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಇವತ್ತು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಲಿ. ಸುಳ್ಳೇ ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇವ್ರ ಜೀವನನೇ ಪೂರ್ತಿ ಇವ್ರ ಕಾಲನೇ ಕಳೆದೋಯ್ತು. ಈಗಲಾದರೂ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದು ಬಿಡಲಿ. ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದು ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಈ ಜನರ ಜನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಜನರದ್ದು ಏನಾದರೂ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿ, ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿ. देखते हैं समाचार राज्य की। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि उनकी सरकार की राज्य की औद्योगिक विकास दर को दोगुना करने और इसे एशिया में नंबर 1 विनिर्माण केंद्र में बदलने की महत्वाकांक्षी योजना है। अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण में उन्होंने कहा, पिछले 10 वर्षों में राज्य के औद्योगिक क्षेत्र ने 9.3% की वृद्धि दर्ज की है। हमने आने वाले दिनों में 15-16% विकास दर हासिल करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए सालाना लगभग 1.4 लाख करोड़ रुपए के निवेश की जरूरत है और इससे 14 लाख नई नौकरियां पैदा करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि राज्य की औद्योगिक नीति को और अधिक प्रगतिशील बनाने की विश्व स्तरीय औद्योगिक बुनियादी ढांचे, डिजिटल सेवा वितरण प्रणाली, सर्वोत्तम श्रेणी की निवेश प्रोत्साहन एजेंसी स्थापित करने, भविष्य के लिए तैयार प्रतिभा पुल सुनिश्चित करने और सहयोग को बढ़ावा देने की पहल की जाएगी। दूरदर्शी नीतियां लागू की जाएंगी। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार राज्य की जीडीपी को बढ़ावा देने के लिए एरोस्पेस और रक्षा, इलेक्ट्रॉनिक घटकों, मुख्य उद्योगों और वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक क्षेत्रों पर अधिक ध्यान केंद्रित करेगी। यह भविष्य की गतिशीलता, हरित ऊर्जा, ड्रोन प्रौद्योगिकी, औद्योगिक रोबोट, सेमीकंडक्टर और मेड और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों पर भी ध्यान केंद्रित करेगा। सीएम ने कहा कि यह सुनिश्चित करने के प्रयास किए जाएंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई रोजगार सृजन को प्रभावित न करे। बुनियादी ढांचा विकास मंत्री एमबी पाटिल ने कहा कि राज्य सरकार राज्य में बनाए जा रहे हवाई अड्डों को संचालित करने के लिए भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण एएआई की तर्ज पर अपना हवाई अड्डा प्राधिकरण स्थापित करने की संभावनाओं पर विचार कर रही है। यहां पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हवाई अड्डों को संचालन के लिए एआई को सौंपने से राज्य को कोई लाभ नहीं हुआ। हालांकि पाटिल ने कहा कि कोई भी निर्णय लेने से पहले उसके फायदे और नुकसान, व्यवहार्यता और कानूनी बाधाओं का विस्तृत मूल्यांकन किया जाएगा। एआई द्वारा मैंगलोर हवाई अड्डे का परिचालन हिस्सा अडानी समूह को देने पर मंत्री ने आश्चर्य जताया कि एएआई ने इसे अडानी को क्यों सौंप दिया। राज्य सरकार ने परिचालन भाग एएआई को सौंप दिया है, लेकिन बदले में एएआई ने इसे अडानी को दे दिया। अगर इसे अडानी को देना ही था तो सरकार एएआई को दिए बिना सीधे ऐसा कर सकती थी।
यह दावा करते हुए कि वह फैसले से खुश नहीं है। पाटिल ने कहा कि उन्होंने अधिकारियों से उन नियमों और शर्तों का अध्ययन करने को कहा है जिनके आधार पर मैंगलोर हवाई अड्डे का संचालन AAI को दिया गया। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया द्वारा उन्हें भाजपा का प्रवक्ता कहे जाने पर पलटवार करते हुए जेडीएस नेता HD कुमारस्वामी ने कहा कि वह कन्नड़िगांव की आवाज है, किसी पार्टी की नहीं। मंगलवार को यहां जेडीएस कार्यालय में स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान पूर्व सीएम ने कहा कि लोगों ने उन्हें विपक्ष में रखने का फैसला किया है और वह सरकार के गलत कामों पर सवाल उठाकर उनकी आवाज बने रहेंगे। कांग्रेस के खिलाफ अपना हमला जारी रखते हुए कुमारस्वामी ने कहा कि पार्टी का गरीबी हटाओ एक नारा बनकर रह गया है और उन्होंने उपहास उड़ाया कि असमानता इसकी गारंटी है। आगे उन्होंने कहा कि आजादी से पहले एक ही ईस्ट इंडिया कंपनी थी, लेकिन आज राष्ट्रीय पार्टियों के रूप में कई कंपनियां हैं जो लोगों को लूट रही हैं। बाद में पत्रकारों से बात करते हुए जेडीएस विधायक दल के नेता ने कहा कि राज्य सरकार के भ्रष्टाचार के मामले किसी फिल्म की अगली कड़ी की तरह हर दिन सामने आ रही हैं। पिछले 15 दिनों में खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग ने लगभग 4.59 लाख मृत लाभार्थियों को हटा दिया है, जो पिछले महीने तक गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल कार्ड के तहत राशन प्राप्त कर रहे थे। राज्य में 1.27 करोड़ बीपीएल अंत्योदय प्लस प्राथमिकता वाले परिवार कार्ड हैं, जिससे 4.36 करोड़ लोगों को लाभ मिलता है। हालांकि ऐसी शिकायतें थी कि भूत लाभार्थियों को मुफ्त अनाज मिल रहा था। इन मृत लाभार्थियों को बाहर करने के लिए सरकार ने विभाग को ऐसे नामों की पहचान कर उन्हें रिकॉर्ड से हटाने का निर्देश दिया था। विभाग ने राज्य के मुख्य जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रार के कार्यालय के ई-जन्मा पोर्टल से मृत व्यक्तियों का डेटा एकत्रित किया। रुकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और VIP सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर APMC वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं आगे के समाचार। केंद्रीय कैबिनेट ने जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए बड़ा फैसला किया है।
पीएम ई बस सेवा के तहत 100 शहरों को 10,000 बसें मिलेंगी। इस बात की जानकारी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दी है। उन्होंने कहा कि भारत के शहरों के लिए ग्रीन मोबिलिटी को ध्यान रखते हुए पीएम ई बस सेवा के लिए 57,613 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 1,000 इलेक्ट्रिक बसों को 100 शहरों को मुहैया करवाया जाएगा। उन्होंने बताया कि 3 लाख से 40 लाख की जनसंख्या वाले शहरों की संख्या 169 है, जिसमें से 100 शहरों का चुनाव किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस बस पीपीपी मोड पर चलाई जाएगी और 2037 तक यह योजना शुरू हो सकेगी। 57,613 करोड़ में से 20,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार और बाकी राज्य सरकार को देना होगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि विश्वकर्मा योजना को आज केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दी है। लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई ने बुधवार को कहा कि मणिपुर में जब तक लूटे गए 6,000 आधुनिक हथियार और 6 लाख कारतूस बरामद नहीं कर लिए जाते, तब तक कोई शांति नहीं होगी। गोगोई ने यहां संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि ये हथियार और गोलियां सुरक्षा बलों से लूटी गई थी और इनका इस्तेमाल राज्य के आम नागरिकों पर होगा। कांग्रेस नेता ने कहा, गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में पूरी तरह से मुख्यमंत्री को समर्थन दिया, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि शांति समितियों में मुख्यमंत्री की मौजूदगी के कारण शांति वार्ताएं विफल हुई हैं। गोगोई ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से लोगों को गुमराह किया, क्योंकि राहत शिविरों में रह रहे 60,000 लोगों के पुनर्वास के बिना और 6,000 हथियारों की बरामदगी तक वहां शांति नहीं हो सकती। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को दिल्ली में राजघाट पर पूर्व प्रधान अटल बिहारी को श्रद्धांजलि दी। वहीं उन्होंने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को उनके जन्मदिन पर बधाई देते हुए उनके स्वास्थ्य एवं दीर्घायु जीवन की कामना की। उम्मीद जताई जा रही है कि नीतीश कुमार की आज अरविंद केजरीवाल से मुलाकात हो सकती है। वाजपेयी के मंत्रिमंडल में मंत्री थे नीतीश कुमार। नीतीश पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए वे बुधवार को दिल्ली पहुंचे। संभावना जताई जा रही है कि इसी मुहिम के तहत नीतीश दिल्ली यात्रा के दौरान इस महीने के अंत में मुंबई में होने वाली विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस इंडिया की बैठक से पहले विपक्षी नेताओं के साथ बातचीत करेंगे। नीतीश की दिल्ली यात्रा के कार्यक्रम का विवरण ज्ञात नहीं है, पर उनकी पार्टी के सूत्रों ने कहा कि केजरीवाल के अलावा कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के साथ उनकी बैठक हो सकती है। दिल्ली से गुरुग्राम को जोड़ने वाले द्वारका एक्सप्रेस के निर्माण को लेकर ऑडिटर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल सीएजी की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सीएजी ने भारतमाला परियोजना बीपीपी 1 के चरण 1 के कार्यान्वयन पर अपनी ऑडिट रिपोर्ट में खुलासा किया है कि एनएचएआई बोर्ड ने द्वारका एक्सप्रेसवे को प्रति किलोमीटर 250.77 करोड़ रुपए के कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की मंजूरी दे दी, जबकि आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति सीसीआई द्वारा अनुमोदित प्रति किलोमीटर नागरिक लागत 18.20 करोड़ रुपए थी, यानी सीसीईए की ओर से स्वीकृत राशि से 14 गुना ज्यादा हो गई। इसी के साथ इस प्रोजेक्ट का कॉस्ट 7,287.29 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। हिमाचल प्रदेश में कुदरत कहर बनकर टूट रही है। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश और लैंडस्लाइड ने जबरदस्त तबाही मचा दी है। पिछले 72 घंटे के अंदर हिमाचल में 60 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। मौत का ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग ने हिमाचल के कई हिस्सों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। शिमला, सोलन और मंडी समेत 6 जिलों में अगले 24 घंटे मुसीबत वाले हैं। इन इलाकों में अगले 24 घंटों में भारी बारिश होने की संभावना है। हिमाचल के कई जिलों में लगातार लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आ रही हैं। शिमला में कई मकान लैंडस्लाइड में ध्वस्त हो चुके हैं। शिमला के समर हिल इलाके में लैंडस्लाइड में एक मंदिर पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। मंडी में भी बुरा हाल है। शिमला कालका रेलवे ट्रैक लैंडस्लाइड की वजह से उखड़ गया है। राजधानी शिमला के कृष्णा नगर इलाके में लैंडस्लाइड की वजह से कई बिल्डिंग भरभराकर जमीन में धंस गई हैं। इस हादसे में एक स्लॉटर हाउस और पहाड़ी पर बने कई घर गिर गए हैं। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर।
देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और VIP सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर APMC वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। अमेरिका में बड़ी आतंकी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। इस साजिश के मामले में पुलिस ने एक 17 साल के किशोर को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि इस लड़के के संबंध अलकायदा से थे। ये लड़का एक बड़े हमले की तैयारी कर रहा था। उसके पास से जो सामान बरामद हुआ उसमें टैक्टिकल इक्विपमेंट, तार, केमिकल और रिमोट डिटोनेटर की तरह इस्तेमाल किए जाने वाले डिवाइस शामिल हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आरोपी इन सामान से बड़े पैमाने पर हमला करने वाला हथियार बना रहा था। FBI के स्पेशल एजेंट जैकलिन मैगियर के मुताबिक आरोपी ने न सिर्फ इन सामानों को इकट्ठा किया था बल्कि वो इनको जोड़कर विस्फोटक सामग्री बनाने का काम भी शुरू कर चुका था। एक अमेरिकन सैनिक इन दिनों अमेरिका से मोहभंग होने के बाद उत्तर कोरिया पहुंच गया है। खुद उत्तर कोरिया ने इस बात का दावा किया है। उत्तर कोरिया ने अपने दावे में कहा है कि पिछले महीने भारी सुरक्षा व्यवस्था वाली सीमा को पार कर उत्तर कोरिया में प्रवेश करने वाले अमेरिकी सैनिक ने अपने देश के समाज की समानता और उसकी सेना में नस्ली भेदभाव से निराश होकर ऐसा किया था। यह अमेरिकन सैनिक ट्रेविस किंग को हिरासत में लेने की उत्तर कोरिया की पहली आधिकारिक पुष्टि है। दक्षिण कोरिया में तैनात ट्रेविस किंग 18 जुलाई को एक सीमावर्ती गांव के दौरे के दौरान उत्तर कोरिया में घुस गए। वह लगभग 5 वर्षों में उत्तर कोरिया में हिरासत में लिए जाने वाले पहले अमेरिकन बन गए। आधिकारिक कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी ने संबंधित उत्तर कोरिया अधिकारी की जांच कर हवाला देते हुए बताया कि किंग ने उन्हें बताया है कि उन्होंने उत्तर कोरिया में प्रवेश करने का फैसला किया है क्योंकि उनके मन में अमेरिका सेना के भीतर अमानवीय दुर्व्यवहार और नस्ली भेदभाव के विरुद्ध भावनाएं थी। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। सैफ अली खान के बर्थडे पर देवरा से उनका दमदार लुक आया सामने। जूनियर NTR को देगी एक टक्कर। अब समाचार खेल जगत के। ऋषभ पंत की मैदान पर वापसी, आगे बढ़कर जड़े तेज तर्रार शॉट। आखिर में समाचार बाजार की। छोटी जोत वाले किसानों के लिए महिंद्रा की शानदार पेशकश, 5.6 लाख रुपए में लॉन्च किया बेहतरीन ट्रैक्टर। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर जिला पुलिस मुख्यालय में रहे जिम को अपग्रेड कर उद्घाटित। वन एवं बीदर जिला प्रभारी मंत्री ईश्वर खंडरे ने कहा कि शिकायत पर जांच और कार्यवाही होगी। कर्नाटक को एशिया में नंबर 1 व निर्माण केंद्र बनाने के लिए औद्योगिक नीति में सुधार। कर्नाटक अपने हवाई अड्डा प्राधिकरण पर विचार कर रहा है। HD कुमारस्वामी किसी पार्टी की नहीं, लोगों की आवाज। केंद्र कैबिनेट का बड़ा फैसला, PM ई-बस सेवा के तहत 100 शहरों को मिलेगी 10,000 बसें। जब तक लूटे गए हथियार बरामद नहीं किए जाते, मणिपुर में शांति नहीं होगी। गौरव गोगोई का बड़ा बयान।
केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।